चलो let's wind up with inventories. गाँव में ही homework नहीं करना कुछ नहीं. See, 4 varieties we have completed till now. Is it correct? See, what all things we have done in inventory till now? 4 varieties we have done. अच्छा listen now. See, 4 varieties of problems we have finished in inventories. What are the 4 varieties? Number 1 was basics. That was LIFO, LIFO, weighted average, simple average, periodic and perpetual. Silence now. दूसरा वाला था अपना adjusted selling price method. याद है आपको? Adjusted selling price में आपका selling price का आपका value of closing stock was given at selling price. Remember, closing stock was given at selling price and you have to calculate the cost price. तो पहले GP margin ढूंढना था. Yes, Vansh. GP margin कैसे ढूंढा था हमने? It was GP upon net sales plus stock into 100. Stock में भी margin पड़ा हुआ था. That was our adjusted selling price method, right? Then the third one was reconciliation. Reconciliation कब होता है? Physical inventory के केस में होता है. Periodic inventory जब आप counting करते हो और year end चूक गए, year end से पीछे चले गए या year end से पहले आ गए, तो आप ट्राई करते हो कि year end का inventory ढूंढे. बराबर है? कैसे ढूंढा जाता है? That was by asking the 2 questions. Yes no वाला part. That was stock reconciliation. याद आ रहा है? FIFO, weighted average, simple average, then adjusted selling price, then stock reconciliation, and then you have physical inventory का problem. Where? Hello. Listen now. Fourth variety in the last lecture we learned, that was physical stock. Normally if the sum is silent, which stock do we try to calculate? Ownership stock. But एक type हमने last lecture किया जहाँ पे we were supposed to calculate physical to physical stock का approach अलग था. क्या देखना था? खाली goods. 2 विंडो के बीच में अगर goods आया तो add और गया तो subtract. और 2 विंडो के बाहर कुछ भी हो रहा है, we are not bothered. याद आया? Now this is the 5th variety. आज शायद दोनों हो जाएगा, 5th और 6th खत्म हो जाएगा inventory. 5th variety में क्या है? ध्यान देना. It's a typical question of abnormal stock. The typical question of abnormal stock. What you have to consider some number 3 देखो suppose. Look at sum number 3. Page 140.
Page 140, sum number 3. Page 140, sum number 3. See, page 140, sum number 3. Look at page 140, sum number 3. Inventory as on 1/4/16 is 2,72,500. मिला? What is 1/4/16? Opening. आपको स्टॉक ढूंढना है क्लोजिंग वाला, दिख रहा है? अल्टीमेटली हर एक क्वेश्चन का टारगेट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू. You have to calculate the value of closing stock. That is the target. अरे एक टाइम हमने किया था फिजिकल इन्वेंट्री. फिजिकल इन्वेंट्री बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है. We need which one? Ownership inventory, right? बाकी सब में ओनरशिप इन्वेंट्री चाहिए. खाली फिजिकल इन्वेंट्री बोला है तो फिजिकल इन्वेंट्री ढूंढो. So look at this question. You have opening stock on 1/4/16 which is 2,72,500. You have got purchases, that is 8,75,500. You have manufacturing expenses, selling expense, administrative expense, financial charges, and you have sales. मिला? अभी ये सब डेटा की मदद से आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, P&L अकाउंट बना सकते हो कि नहीं बना सकते? सेल्स पता है, ओपनिंग स्टॉक पता है, परचेज पता है, डायरेक्ट एक्सपेंस पता है ना? तो अगर मैं समझो विद द गिवन डेटा, एक चलो फटाफट रफ में ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ. आप लोग रफ में बनाना, लास्ट पेज पे. ये डेटा की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ रफ में. देखो रफ में ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ. मुझे बताओ क्या क्या आइटम्स आप लिखोगे और मुझे जीपी ढूंढ के बताओ क्या होगा. आएगा जीपी? ढूंढ पाओगे कि नहीं ढूंढ पाओगे? बताओ. एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ रफ में फटाफट और ट्राई टू फाइंड आउट ट्राई टू पोस्ट द वैल्यूज. व्हाट वैल्यूज वी आर हैविंग. चेक. ओपनिंग इन्वेंटरी डाल दो. आप क्या लिखोगे? ओपनिंग इन्वेंटरी लिखोगे. कितना है? 2,72,500. मिला? परचेजेस लिखोगे आप 8,75,500. सही बात. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखोगे. दिस इज 2,50,000. मिला? सेलिंग एडमिन फाइनेंस लिखना है कि नहीं लिखना है? कहाँ जाएगा? अच्छा यहाँ पे सेल्स आएगा 25,45,000. Is that right? एक चीज यहाँ पे मिसिंग है. अगर वो मिल जाती ना तो मैं जीपी ले लेता. क्या मिसिंग है? अच्छा क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, वरना जीपी मिल जाता. अच्छा जीपी मिल जाए तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, है ना? दोनों में से एक चीज चाहिए. जीपी मिला तो ये मिल जाएगा, ये मिला तो ये मिल जाएगा. होता क्या है ट्रेडिंग में? सेल्स और सीओजीएस ही होता है. सेल्स माइनस सीओजीएस इज जीपी, सेल्स माइनस जीपी सीओजीएस. यू नो वेरी वेल. यस और नो? जीपी के लिए एक हिंट दिया हुआ है आपको समझ. देखो एकदम लास्ट लाइन पढ़ो. देखा उधर एक करेक्शन करना. 55% कर देना. डायरेक्ट करेक्शन कर दो. 55% कर दो. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन was 55% on sales. Gross profit margin was 55. 40 का just make it 55%. Now listen to me very carefully. Very carefully. Gross profit margin is 55% on sales. मैं सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन आपको दे दूं बस, बाकी सब भूल जाओ. सब में कुछ लिखा है. Gross profit margin is 55% of sales. You'll get GP. How? 55% of sales. सीधा मार दो. GP मिल जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा. That would have been quite simple. अब एक थोड़ा मसाला डाल दिया. क्या मसाला देखो? Sorry. At the time of valuing the inventory on 31st March 16. Now understand what is 31st March 16.
दिस ईयर का एंड और लास्ट ईयर? हाँ, लास्ट ईयर का है 31 मार्च 16। अरे बोल रहा हूँ अरे उसका सेव बाउटी बाउटी उससे इसके बाद अभी देखो सीधा जीपी परसेंटेज दिया होता, जीपी मिल जाता, स्टॉक मिल जाता, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली एक एक्स्ट्रा चीज दे दिया है आपको समझाने के लिए। क्या दिया देखो, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंटरी एज ऑन 31st March 2016, व्हाट इज 31st March 2016? फर्स्ट ओपनिंग डेट की क्लोजिंग डेट बताओ। 31st March 2016 इज ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट? ओपनिंग डेट है बेटा। 31st March 2017 जो है वो क्लोजिंग है। 31st March 2017 is closing. So 31st March 2016 क्या हुआ? तो इसका मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जब वैल्यू हो रहा था, at the time of valuing the inventory on 31st March 16, a sum of 27,500 rupees was written off on a particular item. It was originally purchased for 70,000 and was sold during the year for 65,000. Barring the transaction related to this item, the gross profit margin was 55%. It means एक आइटम ऐसा था स्टॉक का लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते वक्त जिसमें 27,500 was written off, which was originally purchased for 70,000. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बता सकते हो? This item पे you had written off 27,500 which was originally purchased for 70,000. यार गाड़ी में क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, इसका मतलब है ना ये आइटम का ना एनआरवी कम था। How do you value the stock? Cost और NRV whichever is less. तो पिछले साल जब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे थे, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक जब वैल्यू हो रहा था,
लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, ये साल का ओपनिंग स्टॉक। तो वैल्यू करते वक्त बाकी सारे आइटम्स कॉस्ट पे वैल्यू हुए थे, लेकिन देयर वाज वन आइटम जिसका परचेज वैल्यू था 70,000, उसमें 27,500 राइट ऑफ कर दिया गया और उसको कितने पे वैल्यू कर दिया गया? 42,500। क्यों ऐसा किया? एनआरवी कम रहेगा, बाकी सब कॉस्ट पे हुआ, ये एनआरवी पे हुआ, तो कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस पे करते हो आप, बराबर है? तो एक ऐसा आइटम इसके अंदर पड़ा हुआ है जो कितने का है? 70,000 का है, 27,500 का है कि 42,500 का? कैसे पता चला? लास्ट ईयर के वैल्यूएशन से पता चला। 70,000 का आइटम लास्ट ईयर खरीदा था, उसका वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक करते वक्त 70 नहीं रहा, 42,500 हो गया। कैसा 42,500? 27,500 राइट ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब 42,500 का एनआरवी का आइटम इसके अंदर पड़ा हुआ है, एंड दैट 42,500 का एनआरवी का आइटम के आगे क्या दिया है? इट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 65,000। 42,500 का आइटम वाज सोल्ड फॉर 65,000 एंड इज अ प्रॉफिट ऑफ 22,500। तो अगर बेचा है तो इसके अंदर पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये जो आइटम है इसको बोलते हैं अबनॉर्मल आइटम। क्या बोलते हैं? क्यों अबनॉर्मल? ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल नहीं हुआ है ना। रिकंसिलिएशन के वक्त भी आता था, कोई आड़ा टेढ़ा भाव पे निकल गया, 160 का 180 पे गया था, कभी लॉस में गया था। एक दो एग्जांपल देखे थे हमने। इनको बोलते हैं अबनॉर्मल आइटम। अबनॉर्मल आइटम का क्या लॉजिक है कि ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिकता नहीं है। तो ये 42,500 का जो आइटम इधर पड़ा है वो बिका कितने में है? यहाँ पे 65। इट हैज बीन सोल्ड ऑफ, इट हैज बीन सोल्ड ऑफ। तो बारिंग दिस ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन को अगर हटा दोगे तो यू गेट अ मार्जिन ऑफ 55%। इसका मतलब मैं सीधा इस पे 55% मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता? क्यों? अबनॉर्मल आइटम एक पड़ा हुआ, एक अबनॉर्मल आइटम पड़ा हुआ, बात समझ में आई? एक अबनॉर्मल आइटम पड़ा हुआ होने के कारण मैं इस पे 55% मार्जिन नहीं कर सकता। तो कैसे करोगे? हटा दो, इधर से भी हटाओ और इधर से भी हटाओ, सारा कुछ नॉर्मल कर दो ना, सारा कुछ नॉर्मल कर दो। क्योंकि जो अबनॉर्मल आइटम बिका है ना, क्या उसका मार्जिन 55% है? वेरीफाई कर सकते हो आप। 65,000 में 55% मारो, कितना आता है? 38 something कुछ तो आएगा। 35. Was the profit 35,750 on that, on those goods? No. 22,500 we just now saw, right? So how to tackle this kind of problem? Whenever you have abnormal item, just remove it. Just remove it. Wherever it is, remove it. तो इधर से भी हटाओ और इधर से भी हटाओ। तो इधर से कितना हटाएंगे और इधर से कितना हटाएंगे? हाँ, इसको हटा दो तो इधर बचेगा कितना मेरा? 24,80,000 और इधर कितना बचेगा? 2,30,000। अब मेरा जीपी कितना है? इसका 55% है। कर लो ना, इसका जीपी कितना है? 55% है। कितना मिला? 13,64,000। ओके, 13,64,000, 55% लिया, मिला? हेलो, अब ये जीपी एक्चुअल जीपी है कि फेक जीपी? क्यों? वो ट्रांजैक्शन बाकी है एंटर करने का, तो ये रियल जीपी। लेकिन फिर भी इसके मदद से जो स्टॉक मिलेगा और एक्चुअल जीपी के मदद से जो स्टॉक मिलेगा सेम ही होगा। देखो बता, ये जीपी मिला, स्टॉक ढूंढो, डेबिट माइनस क्रेडिट करें। 174500 आया। हेलो, डेबिट माइनस क्रेडिट, जस्ट डू इट। ये सारा डेबिट्स माइनस ये क्रेडिट कर। 239,500. Remember this value, 239,500 आया stock value. This is your closing stock. Trust me, this is your closing stock. 2,39,500
Now let us, this was not your correct GB, right? क्यों? ये ट्रांजैक्शन बाकी था, ये वैल्यू याद रखना कितना था, 239,500। अभी इसको हटाते हैं और एक्चुअल ट्रांजैक्शन डाल देते हैं, मतलब एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक था 272,500, एक्चुअली सेल्स था आपका 25,45,000, यस। और ये जीपी कितना हो जाएगा अभी, 1364 प्लस 22,500, so how much? हाँ, 1386,500. Now you get your value. Get the same value. Obviously you get the same value. No, why? आपने क्या किया, इधर 42,500 ऐड किया, इधर 22,500 ऐड किया, इधर 65,000 ऐड किया. You will get the same closing stock, which is 2,39,500. Is this clear? So logic क्या है? जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है, तब अबनॉर्मल आइटम क्या कर दो, पहले हटा दो। अबनॉर्मल आइटम जिधर भी पड़ा है उधर से क्या करो, हटाओ। यहाँ पे आया ना जीपी, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, आया, कैलकुलेट किया। अब ध्यान दो, मैंने क्या सीखा है अभी, क्या पता चला अपने को कि जब भी हमारे आइटम्स में अबनॉर्मल आइटम पड़े होते हैं, किधर भी पड़ा होने दो, ओपनिंग स्टॉक में पड़ा होने दो, परचेज में पड़ा होने दो, सेल्स में पड़ा होने दो, किधर भी पड़ा होने दो, वहां से उसको क्या करो, पूरा निकाल दो, उसको हटा दो और फिर अपना क्लोजिंग स्टॉक ढूंढो। और जो क्लोजिंग स्टॉक अभी मिला वही क्लोजिंग स्टॉक बाद में मिलेगा, वो आइटम को ऐड बैक करने के बाद यू गेट द सेम क्लोजिंग स्टॉक। इज इट क्लियर? जस्ट रिमूव द अबनॉर्मल आइटम। वेयर वाज द अबनॉर्मल आइटम ओवर हियर? तो हटाया, और सेल्स में था उसको भी हटाया। That's it. That is only aim of this problem, to understand ये abnormal item को कैसे टैकल करना है। abnormal item को कैसे टैकल करने का, उसको हटा देने का। Get the GP, normal GP, get the closing stock। जो closing stock अभी आया वो abnormal को include करने के बाद आएगा। Is this clear? समझा? तो इसको वर्किंग फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। हो गया, क्लोजिंग स्टॉक ही ढूंढना है। 2,39,500, 2,39,500। देखो नाउ आपको सब में ना नॉर्मल जीपी, सॉरी एक्चुअल जीपी नहीं ढूंढना है। आपका टारगेट क्या है, वो आप नॉर्मल जीपी से ढूंढो कि एक्चुअल जीपी से ढूंढो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने से मतलब है, सॉरी। तो देखो स्टार्टिंग करो यहाँ से, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल वर्किंग नोट है आपका। पहले राइट डाउन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग abnormal goods, opening stock excluding abnormal goods, opening stock excluding abnormal goods। कितना आएगा, it will be 2,72,500 minus 42,000, which is 2,30,000। बराबर है, मिला? हेलो, एड परचेज में कुछ भी अबनॉर्मल था कि नहीं? तो कितना था परचेज आपका? 875,500। एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? 2,50,000। बराबर है। Will you consider admin selling finance? कंसिडर करने का कि नहीं करने का। प्लस जीपी एट नॉर्मल सेल्स, जीपी एट नॉर्मल सेल्स। What was GP at normal sales? What is the value of normal sales? It is 24,80,000 का 55%। करेक्शन है, जानवी एंड लोगेट 40 का 55 है। दिस इज कितना? 13,64,000 मिला?
excluding abnormal sales का GP. This is normal GP. Is it clear? GP at normal sales. GP at normal sales. मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे. मिला? GP at normal sales. ये सबका टोटल ले लो कितना आ रहा है? ये सबका टोटल ले लो. 27 lakh 19,500 minus sales normal मतलब excluding abnormal goods sale is how much? 25 lakhs 45,000 minus 65,000 which is 24 lakh 80,000. You arrive at value of closing stock as on 31st March 7. कितना आया था? 1? सर वो 500 नहीं आया ना, 2790 है. 2790 है? 875 500 Okay. And this is 2790. नहीं वो तो बराबर है. बराबर है, देख लो. सेम ही चीज है, मैंने खाली वर्किंग नोट फॉर्म में प्रेजेंट कर दी. क्या किया? ओपनिंग स्टॉक से अबनॉर्मल आइटम हटाया, परचेज हो लिया, मैन्युफैक्चरिंग हो लिया. Why I did not take admin selling finance? Why I did not take admin selling finance? P&L के थे. GP at normal sales ले लिया. ये करेक्ट जीपी नहीं है, फेक जीपी है. लेकिन हमें वो जीपी नहीं ढूंढना है, अपने को क्या ढूंढना है? स्टॉक. स्टॉक तो यही मिलेगा. उसको इंक्लूड करो या एक्सक्लूड करो, इससे फर्क नहीं पड़ता. लेस सेल्स एक्सक्लूडिंग अबनॉर्मल गुड्स. दिस इज योर. बोलो क्या हो गया? बोलो बोलो. देवम देगा. उसमें खाली ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करना होता है. 22,500 ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करो तो भी चलेगा, तो भी सेम ही है. और आपको सेल्स में भी ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे. वो तो वही आ जाएगा. सेल्स मतलब टोटल सेल्स लेना पड़ेगा. टोटल सेल्स लेना पड़ेगा ये वैल्यू का 25 लाख 45 और ये लेना पड़ेगा 272,500. तो भी चलेगा. क्या हुआ बोल? नहीं तो फिर सेम कैसे आएगा अगर सेल्स अरे जीपी में 22,500 ऐड करो इधर. जीपी ये मिला, 3064 मिला, इसमें 22,500 ऐड किया. क्या क्या है 22,500? अबनॉर्मल गुड्स का जी. इधर 2,72,500 ले लिया. अबनॉर्मल नहीं हटाया, 272,500 ले लिया. हाँ, और सेल्स भी पूरा ले लिया 25 लाख 45 जो मैंने वापस बताया ना आपको करके. सब में चेंज करना पड़ेगा तो आएगा. आंसर सेम ही है. That way also you can do it is fine. You get the same answer. GP is 239,000. ये जो अबनॉर्मल गुड्स था ना 42,500 सोल्ड फॉर 65 सेल्स के अंदर पड़ा है ना, तो हटा दो. समझा? आने पर सेम 272,500 आने पर सेम 25 लाख 45 અને અહીંયા ખાલી જીપી એડ કરना है. આ કરવાનું, આનામાં 22,500 ऐड करना. दोनों तरीका समझा. यहाँ पे मैंने सारा अबनॉर्मल हटा दिया है. आप सारा अबनॉर्मल ऐड करके भी सेम आंसर ला सकते हो. कैसे लाओगे? ओपनिंग स्टॉक कितना ले सकते हो? 272,500. सेल्स कितना लेने का? 27 लाख 45. हेलो 25 लाख 45. एंड जीपी कितना लेने का? 1364 प्लस 20. गेट द सेम आंसर. ऐसा भी करो बेटा. दो जगह ऐड किया ऊपर. इधर 42,500 ऐड किया. ये वैल्यू लेने का.
इसके जगह ये ले लो, इसके जगह ये ले लो, और इसकी जगह इसमें 22 पॉइंट दोनों जगह वही आएगा। सॉर्टेड है। लॉजिक क्या है? अब नॉर्मल सोचने वाला चीज क्या था कि जब भी नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अप्लाई करना हो तब अब नॉर्मल आइटम क्या करने का? हटा देने का, तभी 55% अप्लाई कर पाओ, वरना टोटल सेल पे आप 55% करोगे तो आंसर नहीं आएगा। टोटल सेल पे 55% अप्लाई करोगे तो आंसर नहीं आएगा। क्यों? वो अबनॉर्मल गुड्स का मार्जिन 55%। समझा अभी? टेक अनदर एग्जांपल, देखो, लुक एट सम नंबर 11. Look at 11 sum. देखो, page 142. Inventory as on 1/4/16. मिला? हेलो, बता रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ। देखो, इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/16 इज 142,500. मिला क्या? 11 सर, 11. देखो, इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/16 इज 142,500. Purchases are 762,500. Manufacturing expenses are 1,50,000. Selling admin finance क्या करना है? इग्नोर करना है. Sales are 12,45,000. ये डेटा दिया होता, देखो मैं वापस बता रहा हूँ, ये डेटा दिया होता और मैं एक रफ में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ट्राई करूँ इस डेटा की मदद से, तो आई हैव माय ओपनिंग स्टॉक दैट इज 142,500. Am I right? I have my purchases which is 7,62,500. I have manufacturing overheads which is 1,50,000. Right? I have sales that is 12,45,000. Right? I'm short on two values, GP and closing stock. Right? If I have those, one of the two values, I'll be able to get the other one. Right? Yes or no? आगे का मसाला स्किप करो अगर, तो क्या मिलता है? बारिंग दिस ट्रांजैक्शन द प्रॉफिट रेट वाज 45%. मिला? जस्ट मेक इट 50%. करेक्शन, 45 को 50 कर दो. Barring this transaction, the rate of GP was 50% on sales. Now listen to me. 50% on sales. अगर कुछ मसाला ना होता, I would have taken straight 50%. GP मिल जाता, GP मिलता तो closing stock मिल जाता, है ना? है कि नहीं? But ऊपर क्या दिया अभी मसाले में? At the time of valuing the inventory of 31st March 16. What is 31st March 16? Closing or opening? 31st March 16 is closing or opening? ऊपर देखो डेट सन के क्या पूछा है. Find out the closing stock on 31st March 17. So what is 31st March 16? Opening. Opening stock मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते वक्त a sum of 17,500 was written off on a particular item which was purchased for 50,000. 50,000 का आइटम था, उसमें से 17,500 राइट ऑफ कर दिया था, तो उसका वैल्यू कितना था एनआरवी? 32,500. सुन रहे हो? तो वो 32,500 किसके अंदर पड़ा हुआ है? ओपनिंग स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है. अच्छा, वो 32,500 का आइटम was sold during the year for 45,000. Please be quiet. 32,500 का आइटम कितने में बेचा गया? 45 में. मतलब कितना मार्जिन मारा उस पे? 12,500. 32,500 का 45 में बिका, 12,500 बराबर है. Is that 50% मार्जिन? होगा भी नहीं, क्योंकि वो अब नॉर्मल है. 32,500 का आइटम कितने में सेल हुआ है?
45 के अंदर, और वो 32,500 कहाँ पड़ा हुआ है? इसके अंदर। 45 किसके अंदर पड़ा हुआ है? सेल्स के अंदर। इसको हटा देंगे तो मार्जिन कितना है नॉर्मल बिजनेस का? 50% ऑन सेल। तो मैं क्या करेगा? इसको हटा देगा, जस्ट रिमूव दिस। इधर से कितना हटाऊं और इधर से कितना हटाऊं? तो ये कितना हो जाएगा अभी? 12 लाख, और ये कितना हो जाएगा? 1,10,000। अब मैं 12 लाख पे 50% मार सकते हैं जीपी, विच इज 6 लाख, एंड आई गेट माय क्लोजिंग स्टॉक 4,22,000 इज द वैल्यू ऑफ माय क्लोजिंग स्टॉक। मिला? हेलो, अब मैं ये अबनॉर्मल आइटम को हटा के करूं, इनको लेके करूं, आंसर सेम ही मिले। अबनॉर्मल आइटम हटा दी मैंने तो ये मिला। हेलो, अबनॉर्मल कहां से हटाया? और फिर सेल्स पे मार्जिन मारा। हेलो, आई गॉट माय क्लोजिंग स्टॉक। नाउ लेट अस इंक्लूड द अबनॉर्मल आइटम्स एंड चेक। Let us include the abnormal items and check. इधर कितना इंक्लूड करना है? 32,500। तो ये 142,500 होगा। इधर कितना इंक्लूड करना है? बराबर है। और इसका जीपी कितना है इन दोनों का? अबनॉर्मल आइटम का जीपी कितना था? 32,500 का 45 पे बेचा। 32,500 का 45 पे बेचा तो प्रॉफिट कितना था? 12,500 था ना? क्या वो इसके अंदर था? तो ऐड करो तो ये हो जाएगा 6,12,500। अब करो कैलकुलेट, आंसर विल बी द 22,500 22,500 पहले भी वही था। 422,500 पहले भी वही था और अभी भी यही आने वाला है। ये यहाँ पे कैसे मिला? 12,500 एक्स्ट्रा, इट इज 45,000 minus 32,500। समझा कि नहीं? हेलो, गया भेजे में? अब नॉर्मल को हटा के करो तो भी सेम क्लोजिंग स्टॉक आएगा, अब नॉर्मल को लेके करो तो भी सेम ही आने वाला है। लेते वक्त क्या करने का? हर जगह इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो। इधर इसका कॉस्ट, इधर इसका सेलिंग प्राइस, इधर इसका प्रॉफिट। मिला? समझा? करो नोट फॉर्म में करो। 422 आया? बना लो नोट फटाफट। सॉल्व इट। ट्रेडिंग बना के नहीं करना है, ऐसे नोट फॉर्म में करना है। ऑर्डर के टाइम इंग्लिश था। आप मुनीम अब सीए लेके जा ICI में सीधा थप्पा उठा के पूछ उसको फोन करके लाता हूँ मैं। वो अभी दिखा रहे ऑर्डर में, ये हिंदी दिखा रहे और तभी अरे मैं उठा ही नहीं रहा तो सिलेक्ट करते हुए देखा नहीं था। ऑर्डर भी लिस्ट हिंदी आया मैं उसको डिलीट किया बोलता मेरे को ICI को वेट डाला डाला मैं डाल दिया मैंने। तो अभी क्यों इतना लेट ऑर्डर? अरे आया ही महीना नहीं आया ये अभी लेट 15 दिन पहले रजिस्टर समझा? आया आंसर? लॉजिक गया दिमाग में इसका? अब नॉर्मल आइटम निकाल के करो तो भी वही है, डाल के करो तो भी वही है। तीनों जगह डालना लेकिन अब नॉर्मल का कॉस्ट, एसपी और प्रॉफिट तीनों जगह इंक्लूड करना, अदरवाइज तीनों जगह एक्सक्लूड करो। मिला क्या? हेलो हेलो हेलो, दोनों से सही हो।
मतलब तुझे एग्जाम्पल दिखाई देना क्या बोला आगे चलो डन एटीन सम करो खुद से 18 सम में खाली कलेक्शन करना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न इज नॉट 25%, इट इज 55%. Gross profit earned is 55%. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी परचेज तीनों तो दिया है, अरे तो वही लेने स्टॉक परचेज और जीपी सेल्स में सेल्स में नहीं करना कॉस्ट दिया क्या ऑन कॉस्ट. अरे भाई यार अरे यार देखो आराम से सुनो. पहला 25% का 55 किया. अभी पूरा ये मसाला बनाने के बाद प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मली किस पे रहता है? इधर क्या दिया है? 55% ऑन कॉस्ट. तो टेक कॉस्ट एज 100, प्रॉफिट 55, SP is 155. You know the SP. What is the SP? Normal SP लेना. अब नॉर्मल को हटा के 1,60,000 में बेचा था 50 to 50 मतलब कितना होता है? 50,60,000 होता है. 50,60,000 इसके नीचे लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई. 50,60,000 into 100 upon 155. That's your GP. हाँ डेसिमल में आएगा. 50,60,000 into 100 upon 155. Actually जब भी डायरेक्टली जीपी सेल्स पे तो सेल्स पे ले सकते हो, कॉस्ट पे तो इक्वेशन बना के ले सकते हो. इक्वेशन बनाओ. कितना आ रहा है जीपी? 3 2 5 1 6 मिला. अरे इनको सॉरी ये कॉस्ट है, जीपी निकालना. 155 अपॉन 155 करेगा तो जीपी मिलेगा. 100 अपॉन 155 करेगा तो कॉस्ट मिलेगा. ये कर लो अभी जीपी रोक लो. ये कॉस्ट है. 100 upon 155 is the cost. What is the profit? The difference. So what is the difference? कितना है? This is the cost. What is the profit? 1,17,95,484. दो तरीका है. पहले कॉस्ट ढूंढो फिर डिफरेंट ढूंढो, या फिर 50,60,000 into 55 divided by 155. Still you will get the same answer. 50,60,000 अगर सेल है तो जीपी ये है ना हाइपोथेटिकल फिगर है. अगर 100 रुपया कॉस्ट तो 55 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस इज 155. If the selling price is 50,60,000, what is the profit? 50,60,000 into 55 divided by 155. That is the profit. And 50,60,000 into 100 upon 155, this is cost. कॉस्ट का अपने को कोई लेना देना नहीं है. कॉस्ट के कुछ काम में नहीं आएगा. अपने को प्रॉफिट ही चाहिए. इधर सीधा प्रॉफिट आ गया. अब नॉर्मल आइटम हटा के
खाली प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है ना, इसलिए मैंने इक्वेशन बनाया। एसपी पे होता तो मैं डायरेक्टली ले लेता। मिला? माइनस करो या स्ट्रेट इनटू 55/155 करो, क्योंकि ये अगर प्रॉफिट 55 तो ये 155 है, ये 50 लाख 60 को ये बोलो आया। स्टॉक वैल्यू कितना आया? What is the value of closing stock? Say लाओ बोला आपको उधर रिमोट मत चलो गाइस, मिला? What is the value of stock? 14 lakhs 55,000 और अच्छा, इस प्रॉब्लम में और पिछले दो में क्या फर्क था खाली? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है कॉस्ट फंड, एसपी में तो डायरेक्टली सेल्स पे ले सकते। बोलो आया 40 लाख 55 मिला के नहीं? 60,000 का गैप आ गया, 60,000 का गैप आ गया, 2 लाख और 1,40,000 का ओपनिंग स्टॉक में से 2 लाख हटाओ, नहीं 2 लाख नहीं, 1,40,000 हटाओ, 1,40,000 ओपनिंग स्टॉक में से 140 हटाने का, वैल्यू वाज 140, सेल्स में से 160 हटाने मिला? आया? बोलो, still any doubt ask? मिला गया मेजर में गया, still confused ask?
हाँ, इसमें 20 ऐड कर देंगे और वो दोनों का ओरिजिनल वैल्यू है वो भी सेम है। चलो डन, बढ़े आगे। चलो अभी लास्ट वैरायटी। एनी अदर डाउट एनीवन प्लीज आस्क। चलो all of you now look at sum number 19. 19th sum. This is your last variety. 19th sum. देखो इसमें क्या करना है, देखो आपने अब तक 5 चीजें सीखी है अलग अलग। सुनो ना, LIFO LIFO वेटेड एवरेज, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। दूसरा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, याद आया, रिटेल मेथड। तीसरा था आपका ओनरशिप स्टॉक, रिकंसिलिएशन। उसमें क्या करते थे आप, फिजिकल स्टॉक से किस पे जाते थे, ओनरशिप स्टॉक। फिर चौथा वाला देखा हमने, फिजिकल स्टॉक से फिजिकल स्टॉक। पांचवा वाला भी अब नॉर्मल आइटम्स। Sixth one is ownership stock to ownership stock. अब ये क्या हुआ, ओनरशिप स्टॉक टू ओनरशिप स्टॉक का मतलब है कि आपको ईयर एंडिंग पे, सुनना ध्यान से, ओनरशिप स्टॉक मिल चुका है। ईयर एंडिंग का ओनरशिप स्टॉक मिल चुका है, फिजिकल स्टॉक के साथ वेरीफाई कर दिया, ओनरशिप स्टॉक रेडी था। ओके, ईयर एंडिंग के डेट का स्टॉक रेडी है। 31 मार्च अगर ईयर एंडिंग है तो उस दिन का ओनरशिप स्टॉक आपको मिल चुका है। 31 मार्च का, 9 अप्रैल का नहीं, 23 मार्च का नहीं, अगला पिछला नहीं, 31 मार्च का ओनरशिप स्टॉक रेडी है आपका। बट देयर आर सम मिस्टेक्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देयर आर सम मिस्टेक्स इन द बुक एंट्रीज, देयर आर जस्ट सम मिस्टेक इन द बुक एंट्रीज। फिजिकल स्टॉक का कोई आने जाने का लफड़ा लोचा नहीं है, सब काउंटिंग वाउंटिंग के साथ बराबर है। अभी फिजिकल स्टॉक फॉर एग्जांपल आपके गोडाउन में आ रहा है लेट्स से 50,000 रुपीज, और ये सब एडजस्टमेंट्स के बाद आपका ओनरशिप स्टॉक भी आ रहा है 50,000। मतलब मैंने बोला था 99% फिजिकल इज इक्वल टू ओनरशिप, यहाँ पे जो है अपने पास वही हम ओनर है इसके। बट ड्यू टू सम मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग, ड्यू टू सम मिस्टेक्स इन recording, suppose this stock value is coming to be 60,000 या फिर this stock value is coming to be 40,000, ये तो राइट है। ओनरशिप स्टॉक में कुछ तो एंट्री का गड़बड़ किया आपने, क्या किया है, एंट्री का गड़बड़ किया है, जिसकी वजह से 50 की जगह ये 40 हो गया या 60 हो गया। तो आपको क्या करना, रेक्टिफाई, बस वही करना। दिस इज द लास्ट वैरायटी where you are simply supposed to do a rectification. What are you supposed to do? याद करो, रेक्टिफिकेशन चैप्टर याद आया, वही करना। देखो 19th sum, the profit and loss account of Hanuman showed a net profit of 6 lakh rupees. 19th sum, page 146. The profit and loss account of Hanuman showed a net profit of rupees 6 lakhs. Can you see that? After considering the closing stock of 3,75,000, मिला 3,75,000 का क्लोजिंग स्टॉक है and net profit of 6 lakhs. Subsequently, the following information was obtained from the scrutiny of the books. Purchases for the year included 15,000 paid for new electric fittings of the shop. परचेज के अंदर इलेक्ट्रिक फिटिंग्स डाल दिया है। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, फिटिंग्स टू कैश, रॉन्ग है परचेज टू कैश, रिवर्स कैश टू परचेज, रेक्टिफाइड फिटिंग्स टू परचेज। तो ये अभी आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, फिटिंग टू परचेज। सेकंड वन, Hanuman gave away goods of the value 40,000 as free samples for which no entry was made in the books of accounts. Entry क्या है,
एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट टू परचेज ये करना भूल गए थे, ये रिकॉर्ड करना बाकी है, कर दो अभी बात। ये सारे बुक एंट्रीज हैं, ऐसा मत सोचना कि गुड्स नहीं गए गोडाउन से, गुड्स वो सब रेडी है। काउंटिंग वाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब रेडी है। ये 50 ही होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली ये कुछ ऊपर नीचे हो गया ड्यू टू सम रिकॉर्डिंग एरर्स, ड्यू टू सम रिकॉर्डिंग एरर्स। सो यू जस्ट नीड टू पास बुक एंट्रीज एंड अराइव एट द करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक। याद है हमने रेक्टिफिकेशन चैप्टर में देखा था रिवाइज्ड प्रॉफिट्स, याद है? रिवाइज्ड प्रॉफिट्स ढूंढते थे, गलत प्रॉफिट मिलते थे, फिर रेक्टिफाई करते थे, फिर रिवाइज्ड प्रॉफिट्स ढूंढते थे। रिवाइज्ड प्रॉफिट्स कैसे ढूंढते थे? जो नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ता है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट हुआ तो प्रॉफिट घटता है। याद आया? याद आया? बस वैसे ही आप रिवाइज्ड स्टॉक भी ढूंढ सकते हो, रिवाइज्ड डेटर्स भी ढूंढ सकते हो, रिवाइज्ड मशीनरी भी ढूंढ सकते हो, रिवाइज्ड फर्नीचर भी ढूंढ सकते हो। कैसे? बहुत सिंपल है। रेक्टिफाइड एंट्री में समझो फर्नीचर डेबिट हुआ है तो बढ़ेगा, क्रेडिट हुआ है घटेगा, मशीनरी डेबिट हुआ है बढ़ेगा, क्रेडिट हुआ है घटेगा, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ है बढ़ेगा, क्रेडिट हुआ है घटेगा। एंट्री के हिसाब से आपको रिवाइज वैल्यू ढूंढना है। वैसे तो आप सभी चीजों के रिवाइज वैल्यू ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको पूछा नहीं गया सभी चीजों का रिवाइज वैल्यू, आपको खाली पूछा गया एक रिवाइज प्रॉफिट ढूंढो और दूसरा रिवाइज स्टॉक ढूंढो आफ्टर रेक्टिफिकेशन, आफ्टर रेक्टिफिकेशन, दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। देखो वापस पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर केम आउट टू बी हाउ मच? 6 lakh after considering a closing stock value of how much? 3,75,000. Is that your correct value or wrong value? Wrong value. So the profits and the stocks were subject to the following rectification. पहला वाला फिटिंग्स था उसको परचेज में डाल दिया, दूसरा उसने सैंपल के लिए गुड्स दिया था उसने रिकॉर्ड नहीं किया, तीसरा invoices for the goods amounting to 2,50,000 have been entered on 27th March but the goods were not included in the closing stock. मतलब invoices रिकॉर्ड किया, परचेज में बुक में रिकॉर्ड किया, स्टॉक में गुड्स को इंक्लूड नहीं किया, मतलब फिजिकली आ गया है, एंट्री पास करना रह गया। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक? स्टॉक टू ट्रेडिंग, स्टॉक टू ट्रेडिंग, स्टॉक में डालना रह गया, स्टॉक में काउंट करना रह गया, तो स्टॉक टू ट्रेडिंग दैट इज द एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक, वो एंट्री आपको करना है। फिर क्या है? In March 2016, goods of value 2 lakhs were sold and delivered were taken as the sales of April 2016. मार्च में ही सोल्ड एंड डिलीवर्ड था, लेकिन उसको अप्रैल का सेल्स में डाला, तो बेसिकली मार्च के सेल्स में डाला कि नहीं? तो मार्च में अनरिकॉर्डेड रह गया, तो व्हाट इज द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड सेल्स? डेटर टू सेल्स। लाखरी वाला, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 were sent on sale or return basis in March 2016 at a margin of profit of 33.1% on cost. Though the approval was given in April, these were taken as sales for March. आप जब गुड्स बेचते हो सेल और रिटर्न पे, तब आप सेल्स की एंट्री कर देते हो कि नहीं कर देते? फिर ईयर एंडिंग पे अगर जवाब नहीं आता तो आप क्या अज्यूम? रिटर्न होने वाला है। तो दो चीजें एडजस्ट करनी होती है, पहली सेल्स रिटर्न, उसका एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न टू डेटर, सेल्स रिटर्न टू डेटर, और एक चीज एडजस्ट करते हो, स्टॉक, भले ही फिजिकली उसके पास है लेकिन ओनर तो हम हैं, तो एंट्री क्या होगी? स्टॉक टू ट्रेडिंग, स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो ये दो एंट्रीज करनी पड़ेगी। अब ये सारा रेक्टिफिकेशन हो कब रहा है? Where at which stage? Before trial balance, after trial balance, or after final? Obviously after final account, because in the next accounting year. So what do you need to take care of when you do rectification in the next accounting year? P&L adjustment. You have to make P&L adjustment. You can't use nominal account. Nominal account के जगह क्या use करने का? Q after final. Is it clear? So let's begin. पहले तो रफ में मतलब as a working note, show your rectified entries. Show your rectified entries. तो पहला वाला, what is the rectified entry for first one? Wrong reverse correct करने की जरूरत नहीं है, वो भी दिमाग में कर लो, नहीं जमता तो रफ में लिख लेना।
Purchases include 15,000 paid for electric fittings. Correct the fittings to cash, wrong purchase to cash, reverse cash to purchase, rectified. Electric fittings. Can I write electric fittings account? No. Asset है ना बेटा Asset है तो आप लिख सकते हो. He has started answering. अभी ट्राई करो राइट आंसर. Electric fittings are asset, right? Electric fittings are asset. So I can use this account. Not going to affect the profit. But can I use purchase? Why? Nominal. So P&L adjust. कितना? 15,000. मिला? Fittings to P&L adjustment. Next one. Anuman gave away goods. What was the entry? Unrecorded. Advertisement to purchase. Can I use advertisement? Nominal. Can I use purchase? Why no entry? Because P&L adjustment on debit and credit cancels out each other, nullifies each other. एक मैंने टेस्ट में भी डाला था ऐसा एग्जांपल, अगर आपको याद होगा, रेक्टिफिकेशन का टेस्ट में एक नो एंट्री आ रहा था, सेल्स टू परचेज एंट्री, रेक्टी का टेस्ट जो 3 डाला था ना, प्री ट्रायल बैलेंस, पोस्ट ट्रायल बैलेंस और पोस्ट फाइनल अकाउंट, 4 ट्रांजैक्शन, उसमें से एक एंट्री था सेल्स टू परचेज, वो नलिफाई हो रहा है, तो नोट लिखना है उसका. क्या लिखना है? नोट. तीसरा, invoices of goods of 2,50,000 have been entered on 27 March, but the goods were not included in stock. Purchase तो किया, stock में डालना रह गया. What is it? Stock to trading. Can I use stock account? Yes. Closing stock is prepaid. But can I use trading account? No. Trading is nominal. Closing stock to P&L adjustment. How much? 2,50,000. मिला 2,50,000. मिला. In March 2016, goods of 2 lakhs were sold and delivered were taken as sales of April 2016. मार्च में सेल हुआ, taken as sale of April 2016. अभी अप्रैल मतलब नेक्स्ट ईयर का रेक्टिफिकेशन तो नेक्स्ट ईयर में होगा. हम तो 31 मार्च 2016 तक का करें. उस साल में सेल्स में लिया है कि नहीं लिया है? तो ले लो. व्हाट इज द एंट्री? डेटर टू सेल्स का जगह डेटर टू P&L एडजस्टमेंट. सर वो अप्रैल का सेल हुआ है, उसको भी तो उल्टा करना है, वो करे अभी क्यों? नेक्स्ट ईयर का रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट. अभी तो हम प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, उसमें अगले साल का कुछ देखने की जरूरत, पिछले साल का जो रेक्टिफाई करना है करने जाओ. बराबर से मिला. अभी गुड्स कॉस्टिंग 75,000 were sold on sale or return basis. Goods costing 75,000 were sold on sale or return basis with a margin of profit of 33 1/3% on cost. 33 1/3% on cost. Though the approval was given in April, goods were taken as sales in March. तो अभी पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको? सेल्स रिटर्न अज्यूम करना है इसको, है ना. कॉस्टिंग 75 दिया है, क्या दिया है? सेल कौन से भाव पे होता है? कॉस्ट प्राइस की सेलिंग. तो सेल्स रिटर्न भी कौन से प्राइस पे होता है? सेलिंग प्राइस. तो सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न टू डेटर. कैन आई यूज दैट? तो P&L adjustment to debtor, लेकिन which price? Selling price. I don't know my selling price. Profit is how much? On cost or on SP? So this is 133.33. What is it in fraction? 1 plus 1/3 is 4/3. What do I know out of it? Cost or SP? I know the cost. What is my SP? 75 into 4/3 upon 1. That is 1 lakh. बराबर है. तो sales return to customer will be at 1 lakh. Yes. और एक एंट्री करनी पड़ती है क्या?
स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्योंकि फिजिकली उसके पास है लेकिन बुक का ओनरशिप हमारा होगा, और जो स्टॉक आपको मिला उसमें ये इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन अभी भी बाकी है। तो स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, बट कैन आई यूज ट्रेडिंग, बट कैन आई यूज स्टॉक? व्हाई? ऐसा तो कितना होता है ये? 75। इधर सेल्स रिटर्न टू डेटर, हाँ उसमें तो ले लिया है स्टॉक के लिए। वो एंट्री नहीं किया तो कैसे? एंट्री देखो हमेशा याद रखना, आप फाइनल अकाउंट्स करते हो, अनरिकॉर्डेड सेल्स आता है, क्या करते हो? ऐड टू सेल्स, ऐड टू डेटर, अनरिकॉर्डेड परचेज, ऐड टू परचेज, ऐड टू डेटर। डू एनीथिंग इन स्टॉक। व्हाई? व्हाट इज द असम्पशन? हो चुका। तो अगर सेल परचेज अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड के स्टॉक में रह गया तो ही करना है, अदरवाइज हो चुका। हाँ हो चुका, एंट्री भी हो चुका है, काउंटिंग तो वही, एंट्री भी क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया। इज इट क्लियर? अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड स्टॉक में नहीं लिया, कुछ स्टॉक को हाथ मत लगा। मैंने इधर क्यों लगाया स्टॉक को हाथ? फिजिकली उसके पास है, तो ये तो अपने पास आया ही नहीं है। और इधर क्यों लगाया? क्योंकि स्पेसिफिकली बोला था स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया, इसलिए मैंने किया। अदरवाइज स्टॉक के बारे में कुछ ना दिया तो टच करने की जरूरत नहीं। ये वाला सेल और रिटर्न है ना, जब भी आप गुड्स बेचते हो तब आप सेल्स की एंट्री कर देते, ईयर एंडिंग आया और आपको उसने जवाब नहीं दिया तो आप सेल्स रिटर्न अज्यूम करते, सेल्स रिटर्न टू डेटर। अब ये गुड्स एक्चुअली तो आया नहीं है ना, तो फिजिकली उसके पास है लेकिन ओनर हम है, तो अपना स्टॉक बढ़ेगा। क्या हमने स्टॉक को बढ़ाया? अभी तक नहीं, क्योंकि ये दोनों एंट्री रिकॉर्ड करनी बाकी है, इसलिए स्टॉक को बढ़ा दिया, स्टॉक टू ट्रेड। वो आपने फिजिकल ये फिजिकली आ चुका है, एंट्री रह गई। ये फिजिकली उसके पास है, इसकी भी एंट्री रह गई। फिजिकल स्टॉक का कोई लोचा है ही नहीं, ओनरशिप स्टॉक में ये एंट्रीज करनी बाकी है, इसके लिए मैंने बोला। कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में बिना याद सॉर्टेड है। परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में ना स्टॉक को टच करने का नहीं, हो चुका एडजस्टमेंट दिया है स्पेसिफिकली तो ही करने का। खाली एक एक्सेप्शन है, ये सेल और रिटर्न। ये भी कब पता है? ये स्टॉक की एंट्री कब करते हो आप? ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग पे। क्यों? ये स्टॉक की एंट्री सेल और रिटर्न में क्यों करनी पड़ती है ईयर एंडिंग को? फिजिकली अपने पास नहीं है सर, तो फिर एंट्री हो गया रहेगा तो हमें कैसे पता? नहीं हुआ है, क्योंकि ये एंट्री नहीं हुआ तो ये एंट्री भी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया दे वर टेकन एज सेल्स ऑफ मार्च। सेल्स ऑफ मार्च मतलब सेल्स ऑफ मार्च में ही पड़ा हुआ है अभी तक, रिटर्न उसने लिया हुआ नहीं, समझा? अगर उसने सेल्स रिटर्न लिया होता ना तो स्टॉक भी हो चुका होता, अपने कुछ करने की जरूरत नहीं होती। पक्का समझा? अभी अपने को पूछा गया है रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। तो रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक, इधर एक नोट बना लो, लिख लो रिवाइज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, रिवाइज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, रिवाइज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे है ना, हर एक चीज का रिवाइज वैल्यू मैं ढूंढ सकता हूं, फिटिंग्स का ढूंढ सकता हूं कि नहीं? हाँ, डेबिट हुआ है, ऐड कर देगा ओरिजिनल फिटिंग्स में। जो डेटर का ढूंढ सकता हूँ, हाँ ऐड कर दूंगा, डेबिट हुआ डेटर, क्रेडिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ तो माइनस कर दूंगा। ऐसे हर एक चीज का रिवाइज वैल्यू ढूंढ सकते हो। आपको सबका नहीं पूछा गया, आपको किसका पूछा गया? स्टॉक का पूछा गया और रिवाइज प्रॉफिट पूछा गया। कैन यू सी दैट? तो पहले रिवाइज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट वाज द क्लोजिंग स्टॉक ओरिजिनली? 3,75,000, 3,75,000। इसमें क्या करूं? ये वाला स्टॉक क्या करूं? ऐड की सब्ट्रैक्ट। क्यों ऐड? डेबिट हुआ तो ऐड, क्रेडिट हुआ तो सब्ट्रैक्ट, बराबर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? थर्ड एडजस्टमेंट क्या था? इनवॉइस गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, इनवॉइस गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। कितना था? इनवॉइस गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000। और एक ऐड होगा, कौन सा?
ये स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न, स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न कितना है? तो दिस इज 375, 450, 7 lakh. 7 lakh is the revised value of closing stock. Revised value of closing stock. Okay. Revised value of closing stock clear है? जो क्वेश्चन में दिया है वो छाप दो. स्टॉक अगर डेबिट हो रहा है तो ऐड, क्रेडिट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट. सपोज आपको दिया होता स्टॉक वाज ओवर वैल्यू, तो क्या कर देने का? उतना कम कर देना. अंडर वैल्यू दिया तो क्या कर देने का? बढ़ा देना. आपको दिया है गुड्स वेर सोल्ड बट नो एडजस्टमेंट वाज मेड इन क्लोजिंग स्टॉक. गुड्स वेर सोल्ड बट नो एडजस्टमेंट वाज मेड इन क्लोजिंग स्टॉक. तो बढ़ाने का कि घटाने का? तो क्या एंट्री करने का? ट्रेडिंग टू क्लोजिंग स्टॉक. ट्रेडिंग टू क्लोजिंग स्टॉक. Goods were returned by the customers, but no entry was made in closing stock. The stock to trading. बढ़ाओ. Goods were returned by us, but no entry was made in closing stock. So trading to closing stock. समझा? बढ़ाने का तो stock to trading, घटाने का तो trading to closing stock. ये हो गया stock. अभी प्रॉफिट लॉस के लिए भी आप ऐसे कर सकते हो. हमने ऐसे ही नोट बनाया था, याद है आपको? और एक P&L एडजस्टमेंट भी बनाते थे. तो ऐसे फॉलोज द P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो फटाफट. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. P&L एडजस्टमेंट का पोस्टिंग करते जाओ. इधर आएगा बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग्स 15,000. फिर दूसरा तो नलिफाई हो गया है. इधर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज 2,50,000. फिर और क्या है? डेटर टू P&L एडजस्टमेंट. सो बाय डेटर्स दिस इज 2 lakhs. खाली 2 का बाय का तो आई एम पोस्टिंग इट. दिस इज P&L एडजस्टमेंट टू डेटर्स, दैट इज 1 lakh. And then closing stock to P&L adjustment. So by closing stock this is 75. Get your difference कितना आ रहा है? To capital. याद करो डिफरेंस ऑफ P&L एडजस्टमेंट. वेयर डू यू ट्रांसफर? इधर जाता है P&L एडजस्टमेंट का डिफरेंस कैपिटल में. कितना आ रहा है ये? 55 आया हैं? 4 लाख. 4,40,000. क्रेडिट माइनस डेबिट मिला. 4,40,000 आया. हेलो, इधर लिख देने का. देयरफॉर रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट. रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट. ओरिजिनल नेट प्रॉफिट कितना था अपना? 6 लाख, राइट? 6 लाख था ना? ये बराबर है ना? 440. 440. What is the revised value of net profit now? 6 lakh plus 4,40,000, which is 10,40,000. 10,40,000. Revised value of net profit is 10,40,000. समझा कौन? क्या करना था? तो सिंपली रेक्टिफिकेशन, ओनली रेक्टिफिकेशन था. इसमें आपको और भी किसी चीज का रिवाइज वैल्यू पूछा कर सकते हो, लेकिन क्योंकि इन्वेंटरी चैप्टर है तो दे आस्क ओनली स्टॉक. लास्ट मॉड्यूल मॉड्यूल सम रिस्पेक्ट सम नंबर 9 सम. लास्ट लाइन लिखो. फाइंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड नेट प्रॉफिट. 9 sums. Find revised value of closing stock and net profit. Find revised value of closing stock and net profit. Find revised value of closing stock and net profit.
डोनेशन का एंट्री, डोनेशन टू परचेज डोनेशन टू परचेज हाँ मतलब इधर ऐसा डैश हो जाए क्योंकि डोनेशन एक्सपेंस है वो परचेज एक्सपेंस है तो इधर डैश ठीक है मतलब दोनों राइट है ठीक है दोनों राइट है बराबर है एंट्री आएगा लेकिन नलीफाई इसका भी बराबर था तुम्हारा भी वही था वही बोला चलो गाइस आर्यन तस्मी तत्व और छोड़ दिया कल अरे वो लोग छोड़ दियो बोला राजीव सर बोल रहे आप क्यों सर तुम लोग को करना है अच्छे से सिंसियरली करने का किसी का फोर्स पीयर प्रेशर में आके करने का नहीं इम्पोर्टेंट करियर का सवाल है प्रेस्टिजियस कोर्स है डिफिकल्ट कोर्स है मेहनत लगने वाला है मेहनत करने को रेडी है तो मतलब ऐसा मतलब he didn't tell me anything so I don't know exactly that's why I was surprised चलो श्रुति भी
रेक्टिफाइड एंट्रीज आया वन मिनट पहला मेरे को बताओ रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 7,40,000 स्टॉक एंड प्रॉफिट 15,70,000 is 10 15,70,000 and 7,40,000 is 10 रेक्टिफाइड एंट्रीज करो डिस्कस एक और क्वेश्चन भी है तो करो फर्स्ट एंट्री इज फर्नीचर टू परचेज मिला furniture to purchase 25,000 then donation to purchase नलिका हो जाएगा then stock to trading 3,80,000 मिला then debtor to sales मतलब debtor to P&L adjustment 3 lakhs and then दो entry करना है तो sales return to debtor but that will be 1,05,000 हाँ वो इक्वेशन बना के कॉस्ट सेलिंग प्राइस 1,40,000 सेल्स रिटर्न की जगह पीएनएल एडजस्टमेंट टू डेटर 1,40,000 और स्टॉक टू ट्रेडिंग 1,05,000 मिला अब रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे मिलेगा ओरिजिनल स्टॉक कितना था 2,55,000 प्लस 3,80,000 प्लस 1,05,000 7,40,000 मिला एंड रिवाइज नेट प्रॉफिट कैसा मिलेगा ओरिजिनल 9 लाख बराबर माइनस 25,000 9 लाख माइनस 25,000 फिर आपका आएगा प्लस 3,80,000 प्लस 3 लाख माइनस 1,40,000 हाँ प्लस 25 सॉरी पहला 9 लाख प्लस 25,000 प्लस 3,80,000 प्लस 3 लाख और माइनस 1,40,000 हाँ प्लस 1,05,000 प्लस 1,05,000 भी है कितना आ रहा है 15,70,000 मिला पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेना 500 मिल जाएगा अभी
एक छोटू सा सम है, 2 ग्रुप में नहीं करना है, उधर ही सॉल्व करना है, 2 सेकंड का सम है, लास्ट सम है। एनीवन हैज मार्क्ड? वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सम्स। इसने मार्क किया है सारा सम। ये बुक तो नहीं, देखो छोटू सा एक सम है, सम नंबर 8। फोकस, सम नंबर 8। देखो ध्यान से, 8 सम। लुक एट 8 सम गाइस। सुरेखा, उधर ही सॉल्व करना है, लॉजिकल है, सिंपल है। सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 products. सुनो अभी। Surekha Limited deals in 3 products P, Q and R, which are neither similar nor interchangeable. So these are unique items, याद है? Item by item basis. At the end of the financial year, historical cost and NRV of the items of closing stock are given to you. Determine the value of closing stock. तीनों आइटम का कॉस्ट दिया है, NRV दिया है। पहला आइटम, what will be the value of closing stock? 38, tick 38. What will be the value of closing stock of item Q? 29, tick 29. R का क्या होगा? 14. क्या अप्लाई किया आपने? कॉस्ट का NRV whichever is लास्ट में टोटल कर देने का, 14 plus 29 plus 38. Is it clear? भगवान की जो प्रे करो ऐसा कंपनी में ऑडिट करने को मिले आपको। चलो, that's it. Nothing more homework. Stock is over. समझा ना last question? Cost का NRV whichever is less. चलो